Hello to all. We are live now. So, if I'm audible and visible both, please let me know. Good evening. Actually, our class ended at 4:10, so it took 10 minutes to reset and restart the class. So don't worry, we will continue by 5:15 around. So this is our pedagogy class, and if I'm audible and visible both, you can all come in. Hello, good evening, good evening, good evening सभी लोगों को. Yes, Sunita, good evening. Tanima, good evening. Okay, so let's focus on Kohlberg, Lawrence Kohlberg theory, where we have left the content. Lawrence Kohlberg, theory of moral development. Theory of moral development. Can you answer me that morality is related with cognitive development or not? Moral development is related with cognitive development or not? Yes or no? What is your answer on that? So he has defined 3 levels. He has classified moral development in 3 levels. One is pre-conventional. One level is that is pre-conventional. इसको हम बोलेंगे पूर्व परंपरागत या प्राक परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत या प्राक रूढ़िगत अवस्था भी बोल सकते हो आप, स्तर भी बोल सकते हो. Pre-conventional level, right? First one is pre-conventional level. Yes. Yes, it is connected, right? सही आंसर है आपका. Second is what? Second is conventional. Second is conventional level, that is रूढ़िगत कह सकते हो आप इसको या परंपरागत कह सकते हो इसको. And third is post conventional level, that is पश्च रूढ़िगत अवस्था या पश्च परंपरागत स्तर. पश्च परंपरागत स्तर या पश्च रूढ़िगत स्तर, right? This is classified like this. Now, in every classification of his level, he has 2 stages. He has 2 stages in every level. And they are, how many stages? There are 6 stages on the basis of this, right? In this first stage, stage 1 you can say, stage 1 is what? Punishment, obedience, orientation, punishment, obedience, orientation. यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे स्टेज 1 को? दंड आज्ञाकारिता या दंड आज्ञापालन उन्मुखन. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दंड आज्ञापालन उन्मुखता या उन्मुखन, ओरिएंटेशन, राइट? यस नीरज, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है यहाँ से, बिल्कुल. सेकेंड स्टेज इज स्टेज 2, that is relativist instrumental orientation, relativist instrumental orientation, राइट? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, रिलेटिविस्ट इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट लिख लो, इंस्ट्रूमेंटल
correct it, instrumental relativist orientation, this will be more appropriate, यानी कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, right? Now come to the this one, stage 3. This will be stage 3. Stage 3 will be like good girl, good boy, good girl image, good boy, good girl image orientation, image orientation, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, nice girl can also be written, अच्छा लड़का अच्छी लड़की छवि उन्मुखता, छवि उन्मुखता. Stage 4 will be social order or law and order, social order, or you can say law and order maintenance orientation, यानी कि सामाजिक या कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था you can write, और कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता. Now come to the level 3. Level 3 is what? Level 3 is more higher level. Level 3 में stage 5 will come and stage 6 will come. Stage 5 and stage 6. What is stage 5? I am writing here. You can write there also. Stage 5 is social contract orientation. Social contract orientation. सामाजिक अनुबंधन या सामाजिक अनुबंध उन्मुखता. Human rights are given preference there. And stage 5 is what? Stage 5 is universal moral or ethical principle orientation, यानी सार्वत्रिक नैतिक नियम उन्मुखता, सार्वत्रिक नैतिक नियम उन्मुखता, right? So these are the 6 stages as per Lawrence Kohlberg. And one more thing we can understand here is that Lawrence Kohlberg is basically influenced by what? He is influenced by thoughts of Jean Piaget. Thoughts of Jean Piaget. ठीक है, जीन पियाजे के जो नैतिकता पर विचार हैं उससे प्रभावित हैं ये, और ये भी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर ही हैं, है ना. जीन पियाजे के नैतिकता पर विचार से प्रभावित, उसी का एक्सटेंशन है इनका जो थॉट है. ठीक है. So he is influenced by Jean Piaget's thoughts on morality, which we have studied in the morning class. That is heteronomous morality and autonomous morality. तो इनका जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से बिल्कुल प्रभावित है, जो हमने सुबह पढ़ा था, है ना. विषम जातीय मतलब परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता. लिख लिया सबने? क्लियर है भाई? एक और बात बताओ, विच स्टोरी इज वेरी फेमस
about his theory. Which story is very famous about his theory? Can anybody tell me? It is about hinge theory, hinge story, है ना? hinge story is very very famous. जो हिंज की कहानी है, हिंज की कहानी बहुत ही फेमस है इनके सिद्धांत के बारे में, है ना? तो हिंज की कहानी किससे संबंधित है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से। किसके? लॉरेंस कोहलबर्ग के, राइट? तो ये याद रखना है, फैक्चुअल चीज है, पूछा जा सकता है। हिंज स्टोरी इज वेरी फेमस अबाउट दिस थ्योरी। क्लियर हुआ सबको? सुनीता, तनीमा, रोशनी, सारे बच्चे बताओ। अंजलि, यस हिंज, यस सर हिंज। मनीषा, नीरज, सभी का आंसर आ रहा है ना? हिंज डिलेमा, बिल्कुल। हिंज का जो द्वंद है, हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज मॉरल डिलेमा, व्हाट इज मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज मॉरल कंफ्यूजन, व्हाट इज मॉरल रीजनिंग. So hinge dilemma is very famous. He stole medicine. Yes, Neeraj. For her wife. Good. So basically his methodology is what? Let's move forward on another slide. जो ये थ्योरी है ना, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, देखो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है ये बेस्ड है किस पर? इंक्वायरी पे, इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस पे, इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पे आधारित है, यानी कि प्रश्नों पर आधारित खोज या पड़ताल पर आधारित है इनका सिद्धांत, ठीक है? और इसमें ये क्या करते हैं कि जो अलग अलग चिल्ड्रन होते हैं ना, एक अलग अलग एज रेंज के चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना? विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों को ये अपना सैंपल के रूप में सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट चुनते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे ये लेते हैं एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी प्रयोज्य के रूप में, जिनके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है ना? और इनको क्या सुनाते हैं? ये इनको स्टोरी सुनाते हैं, है ना? कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, स्टोरी वेयर देयर इज मॉरल डिलेमा, ठीक है? कहानी सुनाते हैं जिसमें नैतिक द्वंद होता है, जिसमें नैतिक द्वंद होता है, ठीक है? नैतिक द्वंद की स्थिति होती है। और यहाँ पे जहाँ नैतिक द्वंद की स्थिति होती है, मॉरल डिलेमा होता है, यहीं पे ये बच्चों से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ही आस्क क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस आर आस्क्ड, questions are asked from the children that it was right or wrong, what is right and what is wrong. Questions are asked about right and wrong decision, right and wrong decision के बारे में सवाल पूछा जाता है. This is the methodology, this is the process by which he is generating the data, and after generating the data he analyzes it and he proposes his theory, है ना? इस तरीके से उन्होंने आंकड़े संग्रह किए और उस आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और उसके आधार पर उन्होंने नैतिकता का विकास अलग अलग उम्र में कैसे कैसे होता है ये बताया. क्लियर हुआ? अलग अलग लेवल्स बांटे उसके. तो अब यहाँ पे देखो कुछ बातें जरूरी है जानना. क्या जरूरी है? एक तो ये है कि जो नैतिकता है ना, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है ना? इट्स नॉट. यहाँ पे पहली चीज क्या है कि जो मोरालिटी है ना, मोरालिटी डज नॉट फॉलो रिजिड ऑर्डर, यानी कि जो नैतिकता है वो दृढ़ता के साथ, नैतिकता दृढ़ता से सभी चरणों का पालन नहीं करती, सभी अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरती, है ना?
मतलब क्या हुआ कि भाई देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो हु कैन थिंक अप टू द हायर लेवल, है ना. And there are so many aged people, there are so many old age people who are still thinking about themselves, who are still deciding about right and wrong on the basis of the punishment, fear of punishment, right. तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई कोई छोटा बच्चा होगा तो वो कम बुद्धि के निर्णय लेगा या कम नैतिकता के निर्णय लेगा और बड़ा व्यक्ति ही नैतिक निर्णय लेगा. कई बार बड़े व्यक्ति भी बहुत छोटे नैतिक निर्णय लेते हैं, बहुत छोटी नैतिकता होती है उनकी, तुच्छ नैतिकता होती है, स्वार्थी नैतिकता होती है. और कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि दुनिया समाज जीव सबके बारे में सोचते हैं, है ना. तो उनका हायर लेवल हो सकता है. तो ये चीज समझना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एक चीज और समझो कि ये जो लेवल है ना, ये एक तरीके से क्या हो रहा है, लो टू हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. लो टू हाई, ये मिडिल लेवल हो गया, है ना. यानी निम्न से हम कहाँ जा रहे हैं, निम्न से उच्च स्तर की ओर जा रहे हैं, उच्चतम स्तर की ओर जा रहे हैं. तो ये उच्च स्तर हो गया, ये निम्न स्तर हो गया. ये भी समझ में आना जरूरी है हमें, है ना. और इसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जैसे पहली अवस्था क्या बताते हैं, ये पहली अवस्था बताते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या है देखो, फर्स्ट स्टेज है आपका पनिशमेंट वाला, है ना. सो चिल्ड्रन चिल्ड्रन थिंक्स चिल्ड्रन ट्राई टू अवॉइड पनिशमेंट, है ना. एंड दैट्स वाई they obey their parents, teachers or other adults. ठीक है, यानी कि बच्चे क्या चाहते हैं भाई, बच्चे दंड से बचना चाहते हैं, है ना. बच्चे दंड से बचना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वे अपने माता पिता शिक्षक या अन्य वयस्कों की आज्ञा का पालन करते हैं, अन्य वयस्कों की आज्ञा का पालन करते हैं. आई बात समझ में, अन्य वयस्कों की आज्ञा का पालन करते हैं. एंड दे थिंक दैट व्हाट इज मॉरल, moral is what which can save them from physical consequences यानी जो नकारात्मक भौतिक परिणाम से बचाएंगी चीजें, जो नकारात्मक शारीरिक परिणाम से बचाएं, वो चीजें क्या हैं, वो चीजें नैतिक हैं. और वाइस वर्सा इसका क्या हो जाएगा, अनैतिक. और अनैतिक या इमोरल क्या हो जाएगा इनके लिए, इमोरल या अनैतिक क्या हो जाएगा, व्हाट इज इमोरल फॉर देम, है ना. विच कैन कॉज पनिशमेंट, दैट बिहेवियर विच कैन कॉज पनिशमेंट और फिजिकल कॉन्सिक्वेंस. ठीक, जिससे दंड मिले वो इमोरल हो गया, जिससे दंड मिलने की संभावना है वो क्या हो गया, इमोरल व्यवहार हो गया, अनैतिक व्यवहार हो गया. ठीक है. सो जो बिहेवियर है, विच बिहेवियर विल बी moral and which behavior will be immoral, it is based on their safety from physical consequences or punishment. So their overall morality is based on what, it is based on physical consequences. So that is why stage 1 का जो फोकस है वो किस पर है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे है, यानी कि शारीरिक प्रभाव क्या पड़ रहा है बच्चे पे उस पर है ना. कि भाई जैसे मान लो दंड मिल रहा है तो वो व्यवहार गलत है, दंड से बच रहा है बच्चा, दंड से बचना संभव हो रहा है जिस व्यवहार से, वो व्यवहार सही है. जैसे भूखा रहना पड़े, ऐसा व्यवहार करने से भूखा रहना पड़े तो वो गलत है.
भोजन मिल जाए अपने पसंद का तो वो क्या है, सही हो। तो इस तरीके के निर्णय वो लेता है, ठीक है। इसको हम रियल मोरालिटी कह सकते हैं क्या? इज दिस अ रियल मोरालिटी? दिस इज नॉट रियल मोरालिटी इन अ सेंस, है ना। दिस इज नॉट मोरालिटी इन रियल सेंस। इसको हम वास्तविक अर्थों में नैतिकता तो कह ही नहीं सकते, ये तो सेल्फ सेंट्रिक है ना। वास्तविक अर्थों में नैतिकता नहीं माना जा सकता इसको। ठीक है, इसको वास्तविक अर्थों में नैतिकता नहीं माना जा सकता। वी कैन नॉट से दैट दिस इज द morality in real sense. Is it clear? And that is why, this is known that this is known that okay, please comment if it is clear, है ना। It is not called as morality in real sense. सही अर्थों में वास्तविक अर्थों में इसको नैतिकता नहीं मानते, क्योंकि ये सेल्फ सेंट्रिक है ना, अपने आप पर केंद्रित है, शारीरिक परिणामों पर निर्धारित हो रही है। क्या आप ये कह सकते हो कि केवल ये बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं या बड़े भी कर सकते हैं? Only children can do this behavior, only children are up to that level, or some big people are also in the same age, in the same form of morality? Others too. बच्चे भी हो सकते हैं और बड़े भी इस तरीके की बुद्धि, इस तरीके की नैतिकता रख सकते हैं, isn't it? So ये कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं करता है ना, कि भाई छोटे से बड़े की जैसे उससे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी नैतिकता की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बच्चे भी हो सकते हैं और बाकी लोग भी हो सकते हैं। Is it clear till here? Adults also, yes. तो कई सारे बड़े लोग भी जो हैं वो छोटी बुद्धि के होते हैं या छोटी नैतिकता रखते हैं, कि भाई दंड के कारण बचने के लिए नैतिकता रखते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई हेलमेट लगा लेते हैं जब पुलिस को देखते हैं, जब नहीं देखते तो नहीं लगाते। ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं बाइक पे, जैसे पुलिस दिखती है तो एक आदमी उतर जाता है पीछे से, है ना। पीपल राइड द बाइक with 3 people, and when they see policemen or traffic police, 1 people leave the bike and only 2 people are riding now. So this is what, this is the morality by constraint, this is the morality by punishment. Using the helmets when police is there and not using helmet when police is not there. ठीक है, बिल्कुल। पिछला स्लाइड एक बार फिर बता दीजिए, देखिए भाई पिछला स्लाइड में देखिए, ठीक है। मनीषा, मोनिका, पिछला स्लाइड क्या था, कोहलबर्ग की बात की कि इनका जो मेथोडोलॉजी था वो क्या था, रिसर्च कैसे किया इन्होंने, इंक्वायरी बेस्ड, यानी प्रश्नावली के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर इन्होंने अपनी योजना, अपनी खोज जांच पड़ताल की। ये बच्चे होते थे, बच्चे जो अलग अलग एज ग्रुप के इन्होंने इकट्ठे किए और उनको अपना सब्जेक्ट या प्रयोज्य मान लिया जिनके ऊपर ये प्रयोग कर रहे हैं। इनको कहानियां सुनाई जाती थी नैतिकता संबंधी, और उसमें कहानी में कहीं ना कहीं आके एक जगह नैतिक द्वंद्व होता था, मॉरल डिलेमा होता था, और वहां पे बच्चों से प्रश्न पूछे जाते थे कि भाई तुम इस निर्णय को सही मानते हो या गलत मानते हो। बच्चे अपना अपना उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों के आधार पर इन्होंने अपना नैतिकता का सिद्धांत विकसित किया, है ना। और मोरालिटी जो है रिजिड नहीं होती, ये हमने पढ़ा था कि भाई जरूरी नहीं कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे हमारी मोरालिटी में क्वालिटी भी आएगी। कई बारी बड़े लोग भी छोटे लेवल की मोरालिटी रखते हैं, है ना, और कई बारी छोटे लोग सीधे सीधे बड़े लेवल की मोरालिटी रखने लग जाते हैं। ये हमने समझा, क्लियर हुआ। इसके पहले आपको मैंने बताया स्टेजेस, ये देख लो एक बार ये भी, ठीक। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, ये इन्फ्लुएंस्ड किससे हैं, जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जीन पियाजे की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है ना। जीन पियाजे का जो विचार है उससे अभिप्रेरित है ये। और हिंज की कहानी को ये आधार मतलब फेमस माना जाता है बहुत ज्यादा। हिंज की मॉरल डिलेमा की जो कहानी थी, दैट इज वेरी मच फेमस, इन विच हिंज इज अ अमेरिकन पर्सन एंड हिज वाइफ इज वेरी इल, ही इज सफरिंग विद सम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, है ना। हिंज है, उनकी पत्नी है जो बीमार है, जीवन का संकट है उसके सामने। अब ये दवाइयां खरीदने जाते हैं, दवाइयां बहुत महंगी हैं, हिंज के पास पैसे नहीं है, केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई मांगते हैं, वो उनसे $200 मांगता है, और इनके पास होते नहीं है, मान लो 200 या $2000 अलग लिखता है किताबों में, तो उससे क्या मतलब है, कितना मांगता है, हमसे तो नहीं मांग रहा ना। तो देखो, तो ये क्या करते हैं, फिर वापस
फिर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर आधा पैसा इकट्ठा करते हैं, $100 इकट्ठा करते हैं मान लो, या $1000 इकट्ठा करते हैं और जाते हैं। फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आधे पैसे ले लो, दवाइयाँ दे दो, बाकी का पैसा भी मैं बाद में आपको दे दूंगा कमा के। वो फिर नहीं मानता, फिर लौटा देता है इनको। फिर उस दिन रात में ये दवाई चोरी कर लेते हैं उनकी दुकान में जाके, केमिस्ट की शॉप में। और ये बच्चों से पूछा जाता है कि हिंज का दवाई चुराना सही था या गलत था। अब सेम एज ग्रुप के बच्चे कुछ कहते हैं सही था, कुछ कहते हैं गलत था, लेकिन दोनों का आधार एक ही था। आधार क्या था कि भाई पनिशमेंट। जो बच्चे कहते हैं सही था, उनका डर ये है कि भाई अगर नहीं दवाई लाएंगे तो पत्नी मर जाएगी और पूरे जीवन अकेला रहना पड़ेगा, और अकेला रहना एक तरीके से बहुत बड़ी सजा है। जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं गलत था, नहीं चुराना चाहिए था, वो इस डर से प्रभावित है कि भाई अगर वो चोरी कर लिया, कल को पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे तो उनको तकलीफ भी होगी और पत्नी के साथ रह भी नहीं पाएंगे जो बचा कुछ समय है। तो बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द मतलब ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, both types of children who are saying yes or no, the basis of them is same, and that is protection from punishment, right? So Hinge is there, his wife is ill with the life threatening disease. He goes to chemist for medicines. The medicines are costing too much. He is not able to pay. He requests the chemist to give the medicine without money. Chemist deny it. He come back, he work hard, arrange some money, arrange around 50% of the money, and goes against to the chemist. Chemist again denied that, bring with come with the full amount, then only I'll give you the medicines. Then he come back, and in the night he has stolen the medicines for saving her, for saving his wife's life. And now the questions are asked from the students that whatever decision he took was right or wrong. Students said that, children said that right, and behind that answer, the logic is that if he has not stolen the medicine, his wife would have been died, and he would have been survived the whole life alone. This is big punishment. The people who have said no, the medicine stealing is not good, they are also suffering from the fear that he will be caught by police and police will punish him, right? So both the students are answering on the same basis. Clear हुआ भाई? Yes, Himanshi. 72 boys of different age groups. Only boys, as simple, not the girls. Yes. वो करेंगे क्रिटिसिज्म हिमांशी, अभी तो पहले समझ लें, है ना? तो स्टेज 1 आपने समझ लिया। अब देखो स्टेज 2 क्या है, समझो। स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखाते हैं, बिहेवियर कितना किसका, शेयरिंग का बिहेवियर। शेयरिंग इज सीन, एक्सचेंज इज सीन, बट दिस शेयरिंग या एक्सचेंज, है ना, साझा करने की जो आदत दिखती है बच्चों की, अपनी चीजें एक दूसरे से साझा करते हैं, है ना, दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, दिस इज फॉर द सेल्फ बेनिफिट। इट इज फॉर द सेल्फ बेनिफिट। जहां उनका अपना फायदा है वो चीज वो शेयर करेंगे, है ना। स्वयं के लाभ से प्रेरित होते हैं ये, स्वयं के लाभ से प्रेरित व्यवहार होता है ये, जब वो चीजें एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। तो ध्यान रखना है ना। व्हेन वी से दैट in the second stage the children share their things with others, so it is not sharing for caring, it is sharing for self benefit, right? This is sharing for self benefit. Like for example, you can say giving own old toy in exchange of न्यू टॉय, यानी कि अपना पुराना खिलौना देकर नए खिलौने को लेना, पुराने खिलौने के बदले नए खिलौना लेना, है ना। ये काम करेंगे बच्चे। भाई उनको पसंद नहीं है कोई खाना, रोटी सब्जी पसंद नहीं है, तो वो रोटी सब्जी अपना दूसरे को दे दे रहे हैं और उनसे उनके मैगी और उनके पास्ताज वगैरह खुद खा ले रहे हैं। तो ये तरीके का व्यवहार दिखाई देगा, है ना। चिल्ड्रन आर शेयरिंग देयर फूड because if the child is not liking the chapati and vegetable, he is sharing that chapati and vegetable to the other classmate, other peer group member, and taking his you can say like taking his maggi pasta or something like that which the child likes. This type of exchange is there, है ना। So this is self benefit motivated exchange or sharing, one. Second, tit for tat. Tit for tat is seen here.
टिट फॉर टैट, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का जो बर्ताव होता है ना, उसको ये सही मानते हैं, ऐसा व्यवहार दिखता है। यानी कि जैसे, यानी और फेवर फॉर इन द एक्सचेंज ऑफ फेवर, यानी कि जैसे मान लो नकल कराएगा कोई बच्चा, है ना, नकल कराओगे तो तुम्हारा होमवर्क पूरा करूंगा, होमवर्क कर दूंगा, ऐसी बातें, ऐसी शर्तें है ना कि भाई इफ you'll हेल्प मी इन एग्जाम आई विल कंप्लीट योर होमवर्क, if you'll give me your book of maths I'll give you a science book, if you will beat me I will beat you. This type of behavior is seen in the second stage. It is also known as reward stage. It is also known as reward stage, और रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, प्रतिफल या पुरस्कार उन्मुखन भी कह सकते हो इसको, राइट। सो इट्स बेनिफिट ओरिएंटेड मोरालिटी, लाभ निर्धारित या लाभ से निर्धारित होने वाली नैतिकता होती है यहाँ पे। और कोई कुछ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा करना होगा, बिल्कुल ठीक है, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा करेंगे। तो भाई किसी ने मुझे मदद करी परीक्षा में तो मैंने उसकी मदद कर दी होमवर्क करने में, किसी ने मुझे मैथ की पुस्तक दी मैंने उसको साइंस की पुस्तक दे दी, ठीक है, साइंस की बुक दे दी, किसी ने मेरी एक किताब फाड़ी मैंने उसकी 2 किताबें फाड़ दी, ठीक है, ये वाली चीज, तो इसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट। बिल्कुल क्लियर हुआ नीरज, मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, तो इसीलिए रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी कि अपने बेनिफिट में चीजें देखना, अपने बेनिफिट में चीजें सोचना। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक सबको, बहुत बढ़िया है। अब देखो आगे क्या है कहानी, आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि स्टेज 3 इज देयर। नाउ व्हाट इज स्टेज 3? स्टेज 3 इज बीइंग सीन क्लियरली, इट इज फॉर नथिंग बट गुड गर्ल गुड बॉय इमेज, है ना। So here the main focus is what? The main focus is on getting approval, getting approval of society or you can say others, है ना। दिस इज द मेन फोकस, यानी कि समाज का या अपने घर परिवार का, समाज की स्वीकृति प्राप्त करना, अपने व्यवहार को समाज का स्वीकरण मिले, इस पे फोकस रहता है, स्वीकृति प्राप्त करना, स्वीकृति प्राप्त करने पर बल। और बचना किससे है, बचना किस चीज से है भाई, बचना है किससे, अस्वीकरण से, रिजेक्शन से, है ना। यानी अवॉइड क्या करना है हमें, व्हाट इज टू बी अवॉइडेड, अवॉइडेड इज रिजेक्शन, द थिंग विच वी नीड टू अवॉइड इज रिजेक्शन। सो रिजेक्शन को अवॉइड करना है और अप्रूवल को हमें प्राप्त करना है, यही फोकस है ना। इसीलिए बच्चा यहाँ पे कौन सा व्यवहार करेगा, वो व्यवहार करेगा, उस व्यवहार को नैतिक मानेगा जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें अप्रूवल मिलेगा, है ना। तो अप्रूवल जिससे मिलेगा वो है नैतिक व्यवहार। देखो जो व्यवहार अप्रूवल दिलाएगा दैट इज मॉरल, विच इज गिविंग रिजेक्शन that is immoral. So child is trying to be moral and trying to be good in the class or in the family, है ना। The child is trying to make his image good in other people's eyes, राइट। यहाँ पे बच्चा क्या चाहता है कि भाई औरों की नजर में उसकी इमेज अच्छी बने, पॉजिटिव बने, बेहतर बने, है ना, और लोग उसकी तारीफ करें, ऐसा चाहता है वो। और वो इस चीज से बचना चाहता है कि भाई लोग उसे रिजेक्ट करें, तो रिजेक्शन जहां पे आएगा, जहां अस्वीकरण आएगा, उसको वो अनैतिक मानेगा, जिससे अस्वीकरण मिले वो अनैतिक है, जिसे स्वीकरण मिले वो क्या है, नैतिक व्यवहार है। तो ऐसे व्यवहार को प्रेरित किया जाएगा, इसके व्यवहार को प्रेरित नहीं किया जाएगा। इससे हमें सीख क्या मिलेगी कि बच्चे के अच्छे व्यवहार को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, इससे उसको नैतिक निर्णय लेने में मदद मिलती है ना। It teaches us that if the child is showing good behavior, you need to appreciate him. You need to appreciate him. You need to motivate him, है ना, for the good behavior, so that
it can come to his value system. The good behavior will be inculcated in his own value system and it will be habitual. तो अच्छा व्यवहार क्या होगा, बच्चे के मूल्यों का आधार बनेगा, बच्चों के मूल्यों में शामिल हो जाएगा और वो उसके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा. इसलिए हमें स्टेज 3 से ये लर्निंग मिलती है. हर एक स्टेज से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी आपको. देखो यहाँ पे है ना, एवरी स्टेज विल टीच यू समथिंग, दैट हाउ you need to plan, how you need to inculcate moral values in your children, है ना, either your school children or your own children, है ना. So this is basically to get the understanding that how children learn, है ना. This is about how children learn moral values. So stage 3 we have understood. Now what is stage 4? Stage 4 is social order maintenance. Like for example, child wants to be part of social order and want its smooth functioning. बच्चा क्या चाहता है? देखो, बच्चा चाहता है, बच्चा सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर, बच्चा सामाजिक व्यवस्था का अंग बनना चाहता है, अंग बनकर इसका सुचारू संचालन चाहता है, इसका सुचारू संचालन चाहता है. ये चाहता है कि उसका सुचारू रूप से संचालन चलता रहे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ट्रैफिक नियमों का पालन, ठीक. या फिर जैसे आप कहो लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना, है ना, यानी कि कानूनी जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधानों को मानना, जैसे मान लो stealing is crime. It is assuming that stealing is crime. So we need not to steal. We need not to steal something. चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है? अपराध है. बच्चा ये समझेगा कि भाई चोरी करना क्या है? अपराध है, सजा मिलेगी इससे, तो चोरी करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए. चोरी करना अपराध है कानून की नजरों में, इसलिए इसे हमें नहीं करना है ना. इस तरीके की सोच. और एक चीज देखो, इसमें बच्चा क्या करता है? इनिशिएटिव्स लेता है, इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी समुदाय की जागरूकता के लिए पहल करना, समुदाय की जागरूकता के लिए पहल करना, स्लोगन लिखना, चार्ट बनाना, टीम का हिस्सा बनना, आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें है ना. सो इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, ये आप लिख सकते हो, पहल करना. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो? देखो, जैसे लेट्स से वी कैन से क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, सफाई के लिए अवेयरनेस हो सकती है, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए अवेयरनेस हो सकती है ना. और भी तमाम चीजें हो सकती हैं, शिक्षा के लिए हो सकती है, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस हो सकती है, गांव में जाना, लोगों को प्रेरित करना शिक्षा के बारे में, है ना, सफाई के बारे में, ये सारी चीजें इसमें आएंगी. हेल्पिंग ओल्ड लेडी क्रॉसिंग द रोड फॉर अप्रिसिएशन. यस नीरज, गॉट इट सर, बहुत बढ़िया. क्लियर हो गया? चौथा स्टेज भी आपको है ना. तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या क्या हो गया? जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है, लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना हो गया, लाइक
क्राइम, सो वी नीड नॉट टू स्टील। चोरी करना अपराध है, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कानून के जो नियम है उनको मानना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस भी बोलते हैं, है ना, लिखा ही हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना इसी में आएगा, ठीक है, सोशल ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी लाइक क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स हो गए, एजुकेशन हो गया, आगे बढ़ चलकर स्लोगनियरिंग करना, चार्ट्स बनाना, पोस्टर्स बनाना, ऑल दैट विल कम अंडर दिस। वाटर वेस्टेज इनिशिएटिव्स में भी दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव में भी दिया, राइट, जंगल कंजर्वेशन में भी दिया, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। So all these will come under fourth stage. Now come to the fifth, the third level, which is the fifth stage. Third level or fifth stage. Now you answer me. Uh, as you are moving to the next stage, your morality is going to be intrinsic to extrinsic, or it is going to be extrinsic to intrinsic. What is there? As we are moving, my question is, as we are going ahead with stages of morality of ours going intrinsic to extrinsic, or it is vice versa, extrinsic to intrinsic. What? ये आंतरिक से बाह्य की ओर जा रही है नैतिकता हमारी, या बाह्य से आंतरिक हो रही है? क्या लग रहा है, बताओ फटाफट से। what is you are seeing here, like from stage 1 to stage 4 you have studied, है ना, from stage 1 to stage 6, or you can say from level 1, that is pre-conventional, to level 3, that is post-conventional. How we are moving? Like this, like this. What? एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक, एकदम करेक्ट, क्या बात है, मजा आ गया, समझते बहुत सही हो आप लोग, है ना। और ऐसे ही समझाना मेरा काम है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, प्रश्न ऐसे सीधे सीधे नहीं आएंगे, स्टेजेस बताओ चलो, है ना। They are not going to ask you question directly that what are the stages, how many stages, which stage will come after which stage. This is not going to be the question. The question will be like this, है ना, as we are moving outwards, as we are moving forward in stages of morality, moral development, our morality is becoming intrinsic to extrinsic, extrinsic to intrinsic, there is no effect of this, है ना, this type of questions they will ask, and you are getting the point correctly. एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक हो रही है ना, आंतरिक रूप से हो रही है। और इसी को अगर मैं पूछूं, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सही क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि नैतिकता हमारी जो है, जो मोरालिटी है, ये है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेस क्वालिटी से हाई क्वालिटी हो रही है, या वाइस वर्सा, इज इट करेक्ट और नॉट? सरल से जटिल की ओर जा रही है, भाई अंदर से बाहर की ओर जा रही है, बाहर से अंदर की ओर जा रही है, तो सरल से जटिल ही तो हो रही है। अंदर की प्रक्रियाएं जटिल है समझना, बाहर की समझना आसान है ना। और लेस से क्या हो रही है, कम क्वालिटेटिव से, कम से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हो रही है, ये भी कह सकते हो, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हो रही है। और ये भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, देखो, कंक्रीट से क्या हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट हो रही है धीरे धीरे, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, पहले वस्तुओं से प्रेरित है, दंड से प्रेरित है, कंक्रीट से है ये, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ रही है नैतिकता हमारी। मूर्त को समझना आसान है, अमूर्त को समझना मुश्किल है। कंक्रीट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट, राइट। सो वी कैन हैव दैट लर्निंग टू हियर। यस, क्लियर दिख नहीं रहा, क्या हो गया? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सही समझ रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही समझ रहे हो।
अब देखो लास्ट के 2 स्टेजेस बच गए, वो भी पढ़ ही लेते हैं ना। स्टेज 5, लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पश्च परंपरागत या रूढ़िगत। ठीक। व्हाट इज स्टेज 5? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। Here the child understand, here the child is up to the age of adolescent, है ना। बच्चे की उम्र जो होती है वो किशोरावस्था तक आ जाती है ना। अब यहाँ पे बच्चे को समझ आता है कि भाई सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज फॉर व्हाट? सोसाइटी इज फॉर पीपल और इंडिविजुअल्स, यानी कि समाज जो है वो किसके लिए है? समाज व्यक्तियों के लिए है। ये बात समझ में आ जाती है इसको। व्यक्ति समाज के लिए नहीं है, समाज व्यक्तियों के लिए है। ठीक। तो सोसाइटी इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, यानी व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। सो मेन फोकस इज गिवन टू इंडिविजुअल राइट्स। सो मेन फोकस इज टू व्हाट? मेन फोकस इज टू ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स। यानी कि जो मुख्य बल है वो किस पर दिया जाता है? जो मुख्य बल है यहाँ पे अब आ जाता है किस पर? मुख्य बल आ जाता है मानवाधिकारों पे, मानवाधिकार या वैयक्तिक अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, वैयक्तिक अधिकारों पर ज्यादा बल होता है यहाँ। ठीक है। So social norms are to make the life better of individuals. It's not that individuals are being hanged by khap panchayats and khap panchayats are being followed. No, we'll have to oppose the khap panchayats if they are like killing the young boys, young girls. It's like that, है ना। Yes, Neeraj. Behavior is always extrinsic because that can be observed, but the motivation is intrinsic. So intrinsic morality is what? Intrinsic, है ना। पहले वो बाहर की चीजों से आ रही थी नैतिकता, अब अंदर की चीजों से नैतिकता आ रही है। तो व्यवहार में तो दिखेगी ही ना, तो व्यवहार तो हमेशा ही बाहरी है, व्यवहार तो हमेशा ही बाहरी पक्ष है, बट सोच क्या है? सोच आंतरिक पक्ष है। तो अभी तक सोच जो थी बाहर से प्रेरित हो रही थी, अब अंदर से प्रेरित हो रही है। यही बात है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई समाज में अगर लोगों की जान जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है धर्म के लिए, है ना, पंथ के लिए, या फिर अपने इज्जत के लिए, समाज के लिए, तो वो सही नहीं है। उसका विरोध करना आएगा इसमें, है ना। क्या करेगा? विरोध करेगा। क्लियर हुआ? सो here the morality means you need to oppose if the society is killing the people, if the society is going against the individual rights, if your freedom of expressions are being exploited by society or by government or by authority, you can go against to that, है ना। it is basically influenced by the autonomous stage of morality. ये स्वायत्त नैतिकता की जो अवस्था जिन पियाजे की थी उससे प्रेरित हो रहा है। आ रही बात समझ में? यस। थर्ड स्टेज you are asking? थर्ड स्टेज, yes, थर्ड स्टेज we can say, बट अप्रूवल कहाँ से आएगी? अप्रूवल तो एक्सट्रिंसिक ही आएगी ना। तो मैंने बताया तो था कि भाई अप्रूवल हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब एक्सट्रिंसिक ही है, इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक नहीं है। एक्सट्रिंसिक ही अप्रूवल मिल रहा है ना, अप्रूवल तो बाहर से मिल रहा है ना, हमें थोड़ी मिल रहा है। हम अपने से थोड़ी ना अप्रूव कर रहे हैं खुद को। यहाँ पे हम खुद से अपने आप को अप्रूव करेंगे भाई हम अपनी नजर में अच्छे हैं तो हैं, दूसरे से माने या ना माने, राइट। वहां पे कहते हैं कि दूसरों की नजर में अच्छा होना है, तो कई बार आप झूठ भी बोलोगे। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा झूठ बोले तो आप झूठ बोल के अच्छे बन जाओगे। वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप चाहते हो कि पेरेंट्स आपको स्वीकार करें, पेरेंट्स आपकी तारीफ करें। तो व्हेन यू सीक अप्रूवल ऑफ अदर्स, इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ,
Approval by whom? Approval by external people, na? It's not your own approval to yourself. When you decide that I'm good, so I'm good, people think that or not, I don't care, then it will be intrinsic. जब आप सोचोगे कि भाई मैं अच्छी हूं तो हूं, कोई माने अच्छा या ना माने, तो ये आंतरिक हो जाएगा. लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि भाई वो माने कि मैं अच्छी हूं, तो उनके हिसाब से व्यवहार करोगे, तो उनके हिसाब से जब व्यवहार करोगे तो उसमें उन गलत व्यवहार भी शामिल हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा. तो लेकिन प्रेरणा कहाँ से आएगी? बाहर से ना. बाहर वाला मानना चाहिए ना भाई. बाहर वाला कहेगा अच्छा, तभी तो मानोगे अच्छा. ठीक. जैसे मैं हूँ, मैं अपना जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ. लोगों को पसंद आता हूँ तो ठीक, नहीं पसंद आता हूँ तो भी ठीक. मैं यूट्यूब पे जाके नहीं ना चिल्ला रहा हूँ भाई ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, 100 मिनट में 200 क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं कराऊंगा. मैं 100 मिनट में, आधे घंटे में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, 15 ही करेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा. जिनको समझ में आएगा वो रुकेंगे, जिनको नहीं समझ आएगा वो चले जाएंगे. ये है मेरा तरीका. लेकिन आज तक ऐसे ही तरीके करते रहा तो कम लोग देखते हैं भाई यूट्यूब पे, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क थोड़ी पड़ गया मेरे पे. ये चक्कर है. ठीक है. तो हर किसी के अपने वसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं. मैंने कभी लिखा था ना कि जमीर की बात करना तो गरीब होना है, अमीरी तो आती ही है जमीर बेचकर, है ना. और एक और लाइन लिखी थी मैंने कि होने को मैं भी अदद अमीर हो जाऊं, मसाइल ये है कि कैसे मुर्दा जमीर हो जाऊं. तो ये जमीर की बात जो है ना, वो आंतरिक बात है, वो आएगी नेक्स्ट स्टेज में, 6th स्टेज में. राइट. अप्रूवल बाय अदर्स. यस. क्लियर हुआ? सो हियर द एग्जांपल्स आर लाइक, what are the examples for this stage? The examples may be like helping someone, laying on the road, laying on the road, laying on the road, even you are getting into trouble. यानी खुद को मुसीबत में डाल के भी दूसरों की मदद करना, ये आ जाएगा इसमें, है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो कई बार होगा कि भाई आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहां पे अपना इंटरव्यू छोड़ के उसकी मदद कर रहे हो, तो ये क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. भाई इंडिविजुअल की मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना हित उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखा जाता है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कि किसी की मदद करना, किसी की मदद करना जो सड़क पर पड़ा हुआ है, चाहे भले स्वयं मुसीबत में पड़ जाए, या स्वयं को मुसीबत में डालकर, है ना. जैसे आप कह सकते हो कि भाई लीविंग ऑफिस टू हेल्प समवन इन एम्स फॉर मेडिकेशन. किसी को इलाज के लिए एम्स में मदद करने के लिए आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो. ठीक है. ऑफिस से छुट्टी लेना, ऑफिस ना जाना, किस लिए? किसी की मदद करने के लिए जो एम्स में भर्ती है, एम्स में दवाई कराने आया हुआ है भाई. अब उस दिन का एब्सेंट लग रहा है आपका, आपकी सैलरी लॉस हो रही है, बट आप कर रहे हो ऐसा, तो ये आ जाएगा इसमें. ठीक है. और लास्ट स्टेज क्या है? देखो लास्ट स्टेज भी पढ़ लो. लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है हमारा स्टेज 6. स्टेज 6 क्या है? यूनिवर्सल एथिकल और मॉरल, यूनिवर्सल एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन, है ना. यानी सार्वभौमिक या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता. ठीक है. यहाँ पे जो मोरालिटी है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? इंट्रिंसिक हो जाती है. मोरालिटी हियर इज टोटली इंट्रिंसिक इन नेचर.
आंतरिक नैतिकता हो जाती है पूरी तरह से। मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सेल्फ कॉन्साइंस, यानी स्वविवेक पर निर्भर। स्वविवेक से, अपने विवेक से आपको जो सही लगता है आप वो करते हो। स्वविवेक पर आधारित नैतिकता है ना। इट इज पार्ट ऑफ कैरेक्टर हियर, पार्ट ऑफ कैरेक्टर। wherever whatever you will do it will be seen in your behavior, है ना। that's why it is called universal, part of character। चरित्र का हिस्सा बन जाती है हमारे, ये चरित्र का अंग हो जाती है, ठीक है। चरित्र का क्या हो जाती है, अंग हो जाती है। और यहाँ पे जो अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर नहीं करते आपको, आप अपनी नजरों से सही होने चाहिए, है ना। यू नीड टू बी गुड एट योर हार्ट, है ना। अदर पीपल्स ओपिनियंस डज नॉट मैटर। यू वांट टू प्रोपोगेट, you want that others should follow this also। आप अपने जैसी नैतिकता की अपेक्षा औरों से भी करते हो, औरों से भी करते हो, ठीक है। ये हो गया सार्वभौमिक के अंदर कि आप इसको क्या चाह रहे हो, यूनिवर्सल बनाना चाह रहे हो, यानी कि सभी लोग ऐसे ही हो जाएं, है ना। सभी लोग ऐसे ही हो जाएं, औरों से भी आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर वांटिंग अदर पीपल टू बी सेम, ठीक है। So it is becoming universal in nature and it is totally intrinsic based on our self conscience, यानी कि अपने स्व विवेक, अपनी बुद्धि पर आधारित होता है। जो हमें ठीक लगता है वो हम करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गोइंग अगेंस्ट द गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और सोसाइटी इफ government is wrong as per you or society is wrong, यानी कि यदि आपको लगता है कि सरकार गलत है या समाज गलत है तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हो, है ना। इसको लिख लो हिंदी में। यदि आपको लगता है कि समाज या सरकार गलत कर रही है, करप्ट है ना, कुछ अनैतिक काम कर रही है, किसी का जबरदस्ती नुकसान कर रही है, लोगों के हितों का उल्लंघन कर रही है, तो आप उसके खिलाफ भी जाके नारेबाजी करोगे, विद्रोह करोगे। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, देखो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फार्मर्स मूवमेंट, जैसे फार्मर्स मूवमेंट। अब कई लोगों ने फार्मर्स मूवमेंट को सपोर्ट किया, उन्हें लगा कि भाई किसान जो है वो सही है। जैसे किसानों का जो आंदोलन था उसको किसानों ने तो जो भी उद्देश्य से किया हो, लेकिन कई लोगों ने जो उसके पार्ट नहीं थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, है ना। किसानों का आंदोलन जो था उसको सपोर्ट करना, सरकार के विरोध में जाके ही तो सपोर्ट कर रहे हो। या फिर जैसे मान लो आप कह सकते हो जैसे कि जो निर्भया केस था, निर्भया केस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, है ना। निर्भया केस इन दिल्ली रेप एंड मर्डर केस, निर्भया केस में जो मूवमेंट हुए, जो प्रदर्शन हुए, है ना। सो देयर पीपल वर going against to government, they were like barricading, they were trying to trap the ministers, the member of parliaments, they are putting pressure on the judiciary, the people were putting on pressure on the government to take rigid action, or you can say strict action, and make laws। सैनिक आएंगे, ग्रेट पर्सनालिटी, बिल्कुल स्पिरिचुअलिज्म, ये सब चीजें आएंगी इसमें, और ये भी चीजें आएंगी, है ना। डन। So, what are the criticizing point of this theory? Let's discuss that too. Why to leave that, है ना। क्रिटिसिज्म इनका मुख्य रूप से देखो किन आधारों पे, दो तीन आधार समझ लो। आलोचना इस सिद्धांत की होती है किस आधार पे। आलोचना एक तो होती है कि भाई ओनली बॉयज वर टेकन एज सैंपल, ओनली बॉयज वर इंक्वायर्ड, यानी केवल लड़कों
से प्रश्न पूछे गए, यानी लड़कों को ही सैंपल के रूप में सिलेक्ट किया गया। तो लड़कियों को, यानी एक तरीके से क्या हो गया, जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये, है ना। दिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रलिटी, नो। जेंडर बायस हो सकता है ये, है ना, जो सिद्धांत है। दूसरा, ओनली यूरोपियन कल्चर इज कंसीडर्ड, क्योंकि वहीं के बच्चे लिए गए, है ना, यूरोपियन अमेरिकन, है ना, यूरोपियन अमेरिकन कल्चर इज कंसीडर्ड, यानी केवल अमेरिकी यूरोपीय संस्कृति को शामिल किया गया, जबकि आप जानते हो कि मोरालिटी इज heavily influenced by cultural values, and it is not क्रॉस कल्चरल है क्या ये सिद्धांत? नहीं है, क्रॉस कल्चरल नहीं है, है ना। इसको हम क्रॉस सांस्कृतिक नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, क्योंकि इसमें एशियन कल्चर्स की उपेक्षा की गई एक तरीके से। एशियन कल्चर इज इग्नोर्ड। हर जगह की कल्चर अलग अलग होती है भाई, ठीक है। एशियन कल्चर इज इग्नोर्ड। बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, नो सच साइंटिफिक एविडेंस या लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। बच्चों से पूछकर उनके मत जाने गए हैं, और वो बच्चों के मत जो होते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन जैसे ही तो हैं। इट्स when you are asking the children are responding, that response is genuine one, that has a scientific proof. How can you say that? So it's not scientifically proved, है ना, no such scientific evidence, यानी कि बहुत कुछ खास वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है इसको प्रूव करने के, कुछ खास वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं। तो ये सब इसकी क्या है, कमियां हैं, ठीक। नो सच साइंटिफिक प्रूफ्स, क्योंकि यू आर आस्किंग द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन आर गिविंग देयर ओपिनियंस, यू आर on the basis of their opinions you are making a law, you are making a theory. How can you prove that the students are responding well, they are answering the truth? How can you say that they are not answering manipulatively, है ना? They may answer you something and they think something else. It is like introspection, है ना। ये भी इंट्रोस्पेक्शन जैसा ही तो है कि भाई जो बच्चे कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, अपनी सही ही बात बता रहे हैं, कोई गारंटी तो है नहीं। बच्चों से ही पूछकर तो जान रहे हो आप, इसका कोई बाहर से तो प्रदर्शन नहीं है। अब बच्चे जो कह रहे हैं अपने उत्तर के रूप में, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, अपनी सही बात बता रहे हैं या गलत बात बता रहे हैं, आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये भी तो अंतर्निरीक्षण विधि जो स्ट्रक्चरलिज्म में थी, संरचनावाद में थी, उसी की जैसा हो गया ना। तो ये सारी चीजें, जेंडर बायस बोल सकते हो, कल्चरल बायस बोल सकते हो, इसके अंदर है। और साइंटिफिक एविडेंसेस की कमी है, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। कोई भी बच्चा छोटी उम्र का बड़े लेवल की नैतिकता रख सकता है, और बड़े लेवल का आदमी भी छोटे स्तर की नैतिकता भी रख सकता है। एनी चाइल्ड ऑफ स्मॉलर एज can have the high level of morality, and any person of the upper age can have the low level of morality. So there is no scientific order or sequence of that, है ना। So these are the some criticisms. I think it's clear. If yes, then answer. समझ आया भाई सबको ये थ्योरी भी? अब हमारी थ्योरी वाला पार्ट हम रोक देंगे यहाँ पे, मेन थ्योरीज हमने सारी कर ली हैं, कुछ छोटी बहुत थ्योरीज रह गई तो लास्ट में देखेंगे, एक क्लास लगा लेंगे, उसमें हम ब्रीफ कर लेंगे स्लाइड के थ्रू, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम सीधे चलेंगे जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंदर, है ना। अगली क्लास जब भी हमारी होएगी, आज या कल में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग कल ही होगी, आज तो नहीं होगी, आज हो गई ऑलरेडी 4 क्लास, है ना। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द न्यू सिलेबस, दैट विल बी एनपीई, आरटीई, राइट, एंड एफएलएन, है ना, फाउंडेशनल नंबर्स लिटरेसी एंड नंबर्स, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर्स, एफएलएन, है ना। स्कूल प्लानिंग, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल लीडरशिप, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले करेंगे। देन असेसमेंट इवेल्युएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड करिकुलम, बस। तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 7th। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नॉट क्लियर इन लेवल 2,
वाई अंजलि? सेल्फ व्हाट इज द बेसिक? लेवल 2 में नहीं था, वो सब में है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है भाई आंतरिक रूप से प्रेरित हो, जो आंतरिक रूप से प्रेरित, मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली। और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जो बाह्य रूप से प्रेरित हो, बाहर से प्रेरित, है ना। अब आप देखो, जैसे आप कह रहे हो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में दंड से बच्चा आज्ञा पालन कर रहा है। दंड क्या है? दंड बाहर से ही तो मिल रहा है उसको, बाहरी उपादान है, बाहरी स्टिमुलस है ना। या जैसे मान लो दूसरा स्टेज देखो, दूसरा स्टेज क्या है? अपना हित है। दूसरा स्टेज क्या है? लाभ है अपना, या पुरस्कार है ना, मटेरियल है, पदार्थ है। ये क्या है? ये भी बाहर से मिलने वाली चीज है, इससे प्रेरित हो रहा है। स्टेज 3 देखो, स्टेज थ्री क्या है? अप्रूवल की बात है, गुड इमेज की बात है। अप्रूवल यानी अनुमोदन। अनुमोदन कहाँ से मिलता है? बाहर के लोग ही तो देते हैं। जैसे आपका प्रिंसिपल आपको अप्रिसिएट कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल अप्रिसिएट कर रहा है तब आप मोटिवेट हो रहे हैं ना। उस व्यवहार को आप कर रहे हो जिससे प्रिंसिपल अप्रूवल दे, आपको अप्रूव करे, आपकी बात माने, है ना। तो अप्रूवल या अनुमोदन क्या हो गया? एक तरीके से ये भी बाहरी हो गया, है ना। यानी कि गुड इमेज जो है हमारी, गुड इमेज किसकी नजर में चाहिए? अपनी नजर में या दूसरों की नजर में? दूसरों की नजर में। दूसरों की नजर में अच्छी इमेज बनाने की कोशिश है ना। बीइंग गुड इन अदर्स आईज। तो ये भी क्या हो गया? एक्सटेंसिक हो गया। अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो कि भाई अब आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो। अब ये सोशल एंड लॉ एंड ऑर्डर क्या है तो इंट्रिंसिक है, सॉरी है तो एक्सट्रिंसिक। पहले से है, ये बाहर से है, समाज की मान्यताएं हैं, कानून के नियम है ना। तो बाहरी तो है ये, एक्सट्रिंसिक तो है, लेकिन इसको मानने की इच्छा जो है हमारी अपनी हो रही है। मानने की इच्छा क्या हो रही है? इसकी अपनी हो रही है। तो अब एक्सट्रिंसिक से धीरे धीरे इंट्रिंसिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। एक्सट्रिंसिक से क्या हो रहा है? इंट्रिंसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वी वांट, यहाँ पे क्या आ गया? वी वांट दैट सोसाइटी शुड स्मूथली रन। वी वांट द सोसाइटी टू बी स्मूथ, द लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, सोसाइटी शुड रन स्मूथली। तो ये वांट क्या है? आंतरिक है। चाहत क्या है? हमारी आंतरिक है। हाँ, नियम कायदे जो है वो बाहर के हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे आप देखो, जब आप स्टेज 4 में जा रहे हो, तो स्टेज 4 में क्या हो रहा है? आप हेल्प करने की बात कर रहे हो, हेल्प करके आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई आपको पुरस्कार थोड़ी मिल रहा है। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, बट आप हेल्प कर रहे हो। तारीफ ना भी करे तब भी आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई पुरस्कार न दे, तारीफ ना भी करे, तो भी आप हेल्प कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? इंट्रिंसिक हो गया। और अंतिम में तो पूरी तरह से इंट्रिंसिक हो गया जब हम कह रहे हैं स्टेज 6 में। तो स्टेज 6 में तो हम अपने खुद के निर्णय बना रहे हैं, अपनी विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने विवेक का के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, अपने विवेक के आधार पर अपनी नैतिकता तय कर रहे हैं। बाहर की दुनिया से हमें लेना देना ही नहीं है ना। यह पूरी तरह से इंट्रिंसिक हो गया। तो हमने क्या कहा कि धीरे धीरे हम बाहर से प्रेरित होते होते अंदर से प्रेरित हो रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे कॉग्निशन की, आप सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ अवेयर्ड, सेल्फ मेड रूल्स को फॉलो करोगे, है ना। सेल्फ रेगुलेशन आएगा। 5 एंड 6 में बेसिक डिफरेंस है ना। 5 में यू आर हेल्पिंग पीपल because you are thinking that human rights are important, individual rights are important, society is a contract between people. In fifth stage, what we are saying, in fifth stage we are saying that society is nothing but, society is what? Society is a contract among people, among people or individuals, right? यानी कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, एक तरीके से क्या है? एक अनुबंध है लोगों का। लोग आपस में शामिल हो रहे हैं मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए, है ना। अनुबंध की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लोगों के बीच बना हुआ एक समझौता है। लोगों के बीच एक समझौता है, तो इसमें लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई सपोज आई एंड यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट,
सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट या मैं और आप इम्पोर्टेंट है? हमने ही तो ये बनाया है ना, हमने ही तो मिलकर इसको बनाया है। तो सोसाइटी को इंडिविजुअल्स ने बनाया, तो सोसाइटी से ज्यादा महत्व किसको मिलना चाहिए? इंडिविजुअल राइट्स को मिलना चाहिए। सामाजिक मान्यताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमापूर्ण जिंदगी, है ना, ये सारी चीजें। तो व्यक्ति का मदद करना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति की जान की रक्षा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को जो हम अपने अंदर से बना रहे हैं, अपनी समझ के आधार बना रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंस है ना। शांत, आई थिंक क्लियर हो गया सबको, सारे डाउट्स, है ना। इंटेलिजेंस की थ्योरी है क्या? सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, बट आ सकती है थोड़े बहुत सवाल, तो पढ़ लेंगे हम लोग, वो भी देख लेंगे। थ्योरीज वाला काम करेंगे लास्ट के 2 क्लास में, अभी रोकेंगे, है ना। थ्योरीज तो बहुत है, अनगिनत है, कितनी पढ़ोगे, है ना। इंटेलिजेंस पे भी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन पे भी थ्योरीज हैं, एरिक्सन की थ्योरी है, दुनिया भर की थ्योरीज हैं। थ्योरीज पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, जितने आएंगे उतनी समझ आपकी बन चुकी है। कुछ और आएंगे तो हम पढ़ेंगे लास्ट में 2 क्लास में, 2-3 जो भी क्लासेस हमें लास्ट में मिलेंगी। पहले मुख्य सिलेबस कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट फिनिश द मेन सिलेबस which is given, and then the time will be there. If time will be there, we will complete other theories also, right? So I may say you goodbye now. Thank you so much, take care, bye bye, be happy. Get connected at 10 p.m. for the YouTube live session for pedagogy questions only. It would be only pedagogy questions today at 10 p.m. night on YouTube. Today night 10 p.m. because today evening class is not there, pedagogy class. So we are going to be live at 10 p.m. on the YouTube. So get connected there.